इस इतिहास को, नमन करो इस मातृभूमि को, नमन करो आकाश को, नमन करो इस मातृभूमि को, नमन करो आकाश को। इस धरती का कण कण पावन, यह धरती अवतारों की है, ऋषि मुनियों से वंदित धरती, धरती चांद सितारों की है। महावीर गौतम की धरती, धरती बौद्ध विहारों की है, चक्रवर्ती सम्राटों की है, विक्रम के दरबारों की है। नमन करो सेलम के तट को, हिममंडित कैलाश को, नमन करो इस मातृभूमि को, नमन करो आकाश को, नमन करो इस मातृभूमि को, नमन करो आकाश को। याद करे सन 57 के उस तलवार जवानी को हम, खून मुझे तो आजादी लो, उस सुभाष की वाणी को हम। माई मेरे रंग दे बसंती चोला, भगत सिंह बलिदानी को हम। गुरु गोविंद के कलियों के उस अजर अमर विश्वास को, नमन करो इस मातृभूमि को, नमन करो आकाश को, नमन करो इस मातृभूमि को, नमन करो आकाश को। प्रेम एकता जात भाव के घर घर बांधना वार सजाओ, हृदय हृदय के मन मंदिर में देशभक्ति के भाव जगाओ। अन्नपूर्णा भारत माता, जग के सब दुख दैन मिटाओ। हिंदू राष्ट्र के अनुपम वैभव के नूतन संकल्प जगाओ। अर्पित कर दो मातृभूमि से तन मन धन हर श्वास को, नमन करो इस मातृभूमि को, नमन करो आकाश को, नमन करो इस मातृभूमि को, नमन करो आकाश को। धन्यवाद। अभी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक ओपिनियन के अध्यक्ष व आज के कार्यक्रम के संयोजक एडवोकेट व नोटरी श्री संजीव कांचन जी माननीय मुख्य अतिथि जी के परिचय और स्वागत का करेंगे। उसके पहले माननीय श्री खोना जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो कृपया करके आगे आ जाएं। श्री संजीव कांचन जी। आदरणीय श्री पी.एन. ओक जी,
my office bearers of Citizens Organization for Public Opinion, my right hand, Sri Mangal Prabhat Loda, Vice President Sri Waman Puranik, and energetic Secretary Mr. Sam Sarkari, and ladies and gentlemen. Citizens Organization for Public Opinion is an organization which was formed about 3 years back by young persons for the purpose of creating public opinion on national and international issues. I am proud to say that we were first to give public platform to a then unwanted man, unwanted the government of India, but wanted for the people of India. That was the Consul General of Israel, Sri Giora Baker. And thereafter government, you all know that the government of India has tied the relation with Israel thereafter. Before that, nobody called for him for any discussion, even forget about the public talk. And our organization, we had 5-6 programs so far. And we, except or after this inaugural function, our meetings were held, and it was politicians, among the politicians who have shared platform with us. I can name very few of them. One is Murli Devra, the Bombay BRCC president. And next is Pramod Mahajan, the BJP MP. And the third is Janata Dal leader and Bombay president, Sri Sharad Rao, and many others. Friends, today we have the program talk with slides, illustrated with slides by Sri P.N. Oak. When we printed this invitation letters, if few persons asked us, what is about this Taj Mahal, you want to convert it into a mandir or what? Because we are already having mandir and masjid, and why you want to create more problems? And I had told, first I was immediately thereafter with the Sangh Parivar, because they are leading the Ram Janmabhoomi issue. They said so far we don't have this Taj Mahal, the intention of converting Taj Mahal into temple. And we want only 3, that is Ayodhya, Kashi and Mathura. And I hope the speaker is also not interested to convert it. But we would like to know the history, the correct history. Always we should be ready to hear the other side of it. So for that purpose, we have called Sri P.N. Oak from Pune. We know Sri P.N. Oak, the freedom fighter. And he was with the great man, Netaji Subhash Chandra Bose, from 1941 to 1945. And not only in India, Singapore, Burma, and all of the Eastern countries, he was with him. And he's written 2 or 3 books on Netaji Subhash Chandra Bose. And when I asked him about his biodata, he was not ready to give me all the details. But I came to know that immediately after that war of independence, during that, he came by walking from, not from a VT to Churchgate. He came by walking from Singapore to Calcutta. And thereafter, thereafter for 41 years, he has worked as a journalist in Delhi, various big newspapers, and now he is retired, and he is the president, as it says that, founder president of Institute for Rewriting World History, Pune. And he has written 14 to 15 books on history, and we are already willing to hear him today. And as a token of love and affection, on behalf of our office bearers, as well as you, I request Sri Padamji Kona, the RSS leader who was kind enough to come, is a Bombay president of RSS. I request him to give the flower bouquet to Sri P.N. Oak, Sri Konaji. Friends, these few words
I welcome the speaker. I welcome all of you to today's talk. First Mr. Wok will speak on this subject, and thereafter we'll have the slide show, and the question and answers will also be there. Thank you, friends. बोलने वाला हूँ, मगर इस संबंध में आपको ये कहना है मुझे कि ताजमहल ये एक ही दुर्लक्षण नहीं है इतिहास का, पूरा इतिहास बिगड़ा हुआ है। केवल भारत का ही नहीं, अपितु सारे विश्व का इतिहास शुरू से अंत तक इस तरह से बिगड़ा हुआ है, जिसका एक लक्षण केवल ताजमहल का जो धोखबाजी चल रही है वो एक उदाहरण मात्र है। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, वो कहता है मुझे चक्कर आते हैं, तो डॉक्टर जब वो जांच करता है वो कहता है भाई ये केवल चक्कर नहीं है, तुमको कैंसर हुआ है। तो वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री को जो कैंसर हुआ है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक संक्षेप में, क्योंकि वो बैकग्राउंड है। उस बैकग्राउंड में हमको ताजमहल का विचार करना। तो ये कारण क्या हुआ? सारे विश्व का जो इतिहास बिगड़ा हुआ है उसका कारण क्या हुआ? उसका कारण ये हुआ कि आजकल जो हम इतिहास पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं या हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वो या तो मुसलमानों का लिखा हुआ है, बाबरनामा, जहांगीरनामा वगैरह तवारीखों पर आधारित है, और या तो यूरोपियन क्रिश्चियंस जो टेवर्नियर, वर्नियर वगैरह आए, इनका लिखा हुआ है। अब देखिए इनकी आयु कितनी है। क्रिश्चियनिटी को स्थापन हुए ज्यादा से ज्यादा 1993 वर्ष हुए, टुडे 1993 एडी, और इस्लाम को स्थापन हुए तो केवल 1371 वर्ष हुए। 1371 वर्ष पहले मोहम्मद ने इस्लाम धर्म स्थापन किया। और मानव इस पृथ्वी पर कितने वर्ष है? लाखों वर्ष है। तो जब मानव इस पृथ्वी पे लाखों वर्ष है, तो ये 1993 जिनकी आयु है, क्रिश्चियन लोग ये क्या जानते हैं लाखों वर्ष का इतिहास? और जो मुसलमान जिनकी आयु केवल 1371 वर्ष है, वो क्या जानते हैं उनका इतिहास? तो ये लाखों वर्ष का इतिहास वैदिक संस्कृति का इतिहास। इस्लाम के पहले, क्रिश्चियनिटी के पहले सारे विश्व में वैदिक संस्कृति थी, और वैदिक संस्कृति एक ही परंपरा है ऐसी जो मानव के पहले पीढ़ी से आज तक हमारे पास इतिहास है। इतना ही नहीं तो आप ब्रह्मांड पुराण जब खोलेंगे तो कहते हैं पहले विश्व में कुछ नहीं था, अंधेरा था, कोई मूवमेंट नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी, कोई आवाज नहीं था। और फिर विष्णु शेषशायी विष्णु प्रकट हुए, उनके नाभि से ब्रह्मा निकले, दक्ष प्रजापति वगैरह। और फिर कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। और द्वापर युग में कौरव पांडवों का जो युद्ध हुआ, तो कौरव पांडव के लास्ट वर्ल्ड वाइड सॉवरेन्स, सारे विश्व के सम्राट, अंतिम विश्व के सम्राट कौरव पांडव थे। तो कौरव पांडवों तक विश्व की सारी भाषा केवल संस्कृत थी। और इसीलिए देखो लाखों वर्ष, कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग करते करते कौरव पांडव तक विश्व की भाषा केवल संस्कृत थी। इसीलिए वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, आयुर्वेद, संगीत, नाटक, नाट्य शास्त्र, ये सारा संस्कृत में है। तो ये जो क्रिश्चियन और मुसलमान लोग हैं, ये बच्चे जैसे हैं, कल के बच्चे हैं। आप किसी घर में जाएंगे और आपको एक 4 वर्ष का लड़का मिलता है, उसको अगर आप पूछेंगे भाई तुम्हारे दादा परदादा कौन थे, जरा इतिहास बतला, अब वो 4 साल का बच्चा क्या बताएगा? तो सबसे बड़ा दोष आजकल के इतिहास में यह है कि हम मुसलमानों का और क्रिश्चियनों का लिखा हुआ इतिहास पढ़ा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। अब इससे देखिए लगभग 3 वर्ष हुए मैंने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन चेयरमैन न्यू दिल्ली को एक पत्र लिखा, और उसमें मैंने उसके साथ एक प्रश्न पत्रिका जोड़ी और
चेयरमैन को ये रिक्वेस्ट की कि चेयरमैन साहब, ये जो मैंने प्रश्न लिखे हुए हैं, मैंने तो 20 दिए, मगर मेरे पास बहुत है, 35-40 प्रश्न हैं, जिसका कोई भी विद्वान उत्तर दे नहीं सकता। तो मैंने यूनिवर्सिटी लैंड कमीशन के चेयरमैन को ये लिखा कि आप कृपया ये जो क्वेश्चन पेपर है मेरा, ये सारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को भेज दीजिए और देखिए उनसे उत्तर क्या था। अब मुझे मालूम था कि ये यूनिवर्सिटी लैंड के चेयरमैन मुझे उत्तर नहीं देंगे, और उत्तर नहीं दिया, और ना ही उन्होंने जो मेरा क्वेश्चन पेपर था वो सर्कुलेट नहीं किया। तो मैं आपको अब बताता हूँ कि वो प्रश्न कैसे हैं। वो सैकड़ों हैं, मैं कुछ नमूने आपको बता रहा हूँ। आप जानते हैं कि पुणे में भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है और डेक्कन कॉलेज है, जो संस्कृत के और वेदों के बड़े विद्वान समझे जाते हैं। उनको मैंने ये एक प्रश्न मेरा है पूछता हूँ मैं, जो भी आप में से संस्कृतज्ञ होंगे, कि कृतयुग के शुरू में मानव के पहले पीढ़ी को ब्रह्मा ने सप्त वेद सिखाए। जो दक्ष प्रजापति, मनु वगैरह थे, उनको वेद सिखाए। तो वो कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग करते करते कौरव पांडवों के समय में जो महर्षि व्यास ऋषि थे, उन्होंने उसका छिन्न भिन्न किया, उसके 4 भाग किए। ये शायद आपको कईयों को पता नहीं होगा, मगर व्यास जो उनका नाम पड़ा है, उनका नाम व्यास नहीं था, उनका नाम पाराशर ऋषि था। मगर दिव्यास वेदानीति वेद व्यासा, जिन्होंने वेदों के 4 टुकड़े किए, अलग अलग खंड किए, इसलिए उनका नाम व्यास पड़ा। तो हम जो वेद पढ़ाते हैं या वेदों पर रिसर्च करते हैं, कहते हैं कि हम भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हम डेक्कन कॉलेज, तो हम उनको पूछते हैं कि भाई वेद अगर देववाणी ईश्वर ने दी हुई कृतयुग के शुरू में, वो 3 युग जो वेद चले थे, वो व्यास जी ने उसमें हस्तक्षेप क्यों किया बता? आखिर व्यास वाले मैन, एक मर्द आदमी है व्यास, और जो 3 युग यानी जो हरिश्चंद्र, राम, विश्वामित्र, वशिष्ठ, इन्होंने जो वेद पढ़े, इसमें ये हेरा फेरी हुई है, हस्तक्षेप हुआ है। ये क्यों हुआ? और फिर भी व्यास जी के प्रति हमारा बड़ा आदर है, वी रिस्पेक्ट हिम एज अ ग्रेट सेज। तो ये दोनों के उत्तर इतिहास में देने चाहिए जो नहीं थे। वो मेरे पास ये उत्तर हैं कि व्यास जी को 3 युग के बाद हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा। तो ऐसे ये एक प्रश्न देखिए। फिर दूसरा प्रश्न, आप जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ये बहुत पूर्णता से थे। टेरर, टॉर्चर, टिरनी, टेम्पटेशन, टैक्सेशन, ऐसे दोनों ये पंथ जो हैं, इस्लाम और क्रिश्ची, ये ऐसे थे। अब उन्होंने ये इतिहास गायब कर दिया। देखो जो इतिहास मैंने कहा कि इतिहास को कैंसिल हुआ है, क्योंकि लगभग 1/3 जो विश्व का प्रदेश है वहाँ क्रिश्चियन धर्म है और दूसरा 1/3 वहाँ इस्लाम है। तो उन्होंने वो इतिहास ही काट दिया कि उन्होंने अत्याचार, बलात्कार से जो अपने धर्म फैलाए, वो काट दिया इतिहास। और इसीलिए ये जो कैंसर में कहता हूँ इतिहास, इसीलिए हमने इंस्टीट्यूट फॉर रीराइटिंग वर्ल्ड हिस्ट्री। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप यू गिव मी अ फंड। मेरे पास एक ये नया टेक्निक है कि हम सारे विश्व को जागरूक कर सकते हैं, मुसलमानों को भी, कि भाई मोहम्मद तो 1371 वर्ष पहले मोहम्मद थे, उसके पहले कोई नहीं था, उसके पहले मुसलमान थे नहीं। तो मोहम्मद के दादा परदादा कौन थे? वो वैदिक धर्म थे। फिर हम क्रिश्चियंस को कह सकते हैं। क्रिश्चियन में तो और एक बात है कि मोहम्मद तो कम से कम एक जीवित व्यक्ति था, मगर क्राइस्ट नाम का व्यक्ति नहीं था। अब देखिए इसका उदाहरण, आप कहेंगे क्या प्रमाण है, तो मेरे पास कई 40 प्रमाण है। उसमें से एक दो मैं आपको कहता हूँ कि आप जो कहते हैं बुद्ध ने धर्म स्थापन किया, उसको क्या कहते हैं? बुद्धिज्म। मोहम्मद ने धर्म स्थापन किया, उसको क्या कहते हैं? मोहम्मडनिज्म। तो फिर जीसस क्राइस्ट ने जो धर्म स्थापन किया, उसका नाम जीससिज्म होना चाहिए या क्रिस्टिज्म होना चाहिए? नीति कैसे है?
क्रिश्चियनिटी शब्द ये गलत है। इट शुड हैव बीन, हैड देयर बीन ए रियल जीसस क्राइस्ट, तो जीससिज्म नाम पड़ता, क्रिस्टिज्म नाम पड़ता, तो ये गलत है। यानी वो आपको दोष दे रहे हैं, कब मान रहे हैं कि क्राइस्ट नाम का व्यक्ति था। तो मेरी एक पुस्तक क्रिश्चियनिटी इज क्रिश्चियनिटी, आप जानते हैं ये क्रिस्टो मुखर्जी जो है ना, वो कृष्ण मुखर्जी है। तो बंगाली लोग, कर्नाटकी लोग कृष्ण को कृष्ण कहते हैं। कर्नाटक में आप जाइए, किसी का नाम कृष्ण रखते हैं, वो कृष्णप्पा कहते हैं। तो कृष्ण का कृष्णप्पा कौन, जैसे भारत में हुआ वैसे वहां भी होता था। तो कृष्ण नीति कौन सी है? भगवत गीता है। तो सब कृष्ण को जागरूक करना चाहिए। अरे भाई, आप लाइस कैश करते हैं और उसने अपना उसको फांसी दिया और उसके खून से हमारे सब पाप नष्ट हो गए, ये बहुत बढ़िया। आपका असली नहीं है कि why Christianity is known as Christianity and why is it not known as Christianism or Jesusism like Mohammedanism and Buddhism? इसका उत्तर इतिहास में नहीं है। फिर तीसरा प्रश्न देखिए, अभी मैंने आपको कहा कि क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम वर स्प्रेड बाय टेरर, टॉर्चर एंड टायरनी। दैट इज व्हाई यूरोप में एक भी नॉन क्रिश्चियन नहीं रहा, और जो जितने अफ्रीका से अफगानिस्तान तक एक भी नॉन मुस्लिम नहीं है, सारे मुसलमान हैं। ये जादू हुआ कैसे? ये भाई टेरर, टॉर्चर, टायरनी। मगर इसी के संबंध में अब आफ्टर गिविंग यू दिस बैकग्राउंड, मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूँ कि बुद्धिज्म स्प्रेड फ्रॉम बर्मा टू जापान। बर्मा, सयाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, कोरिया, चाइना, जापान, कितना विस्तीर्ण प्रदेश है, कितनी जनसंख्या है। तो यहाँ बौद्ध धर्म फैले कैसा फैला? एक भी प्रचारक नहीं किया। अशोक ने जो प्रचारक भेजे, अपना लड़का लड़की, वो केवल सीलोन तक भेजे थे। और कोई सम्राट ऐसा नहीं था कि जिसने कत्ल करके और बौद्ध धर्म वहां स्थापन किया। तो इस प्रश्न का उत्तर किसी को मालूम नहीं है कि बौद्ध धर्म ने ना तो मारकाट की और ना ही प्रचारक भेजे, और तब भी बर्मा से लेकर ठेठ जापान तक सारे बौद्ध हो गए। ये चमत्कार कैसे हुआ? इसका उत्तर भी इतिहास में नहीं। ये केवल मैं आपको नमूने बतला रहा हूँ कि कैसे कैंसर हुआ है सारे हिस्ट्री को। फिर दूसरा प्रश्न लीजिए। एक दिन मैं जब एक बार लंदन में था, तो वहाँ एक हेडमास्टर ब्रिटिश हाई स्कूल के इंग्लिशमैन, अब आप लंदन में जो गए होंगे, वहाँ कई रेलगाड़ियों पर अपमिंस्टर, बसेस पर अपमिंस्टर, एक सॉर्ट ऑफ टर्मिनस, बड़ा विभाग, उसका नाम है अपमिंस्टर। तो मैं पराया आदमी था जो लंदन गया, तो मैंने उस हेडमास्टर को पूछा, उनका नाम था निकोलस डेवेनहैम, and he was principal of the St. James Independent School for Boys. उनको मैंने पूछा कि मिस्टर डेवेनहैम, आप जानते हैं आपका निकोलस डेवेनहैम ये संस्कृत नाम है? क्यों क्या? ऐसे इट इज नकुलस देवनधाम, देव के घर का नकुल, ये तुम्हारा नाम है। फिर मैंने उसको पूछा कि भैया हर जगह अपमिंस्टर है, तो मुझे डाउन मिनिस्टर कहाँ है बतलाओ। तो वो इतना क्यों गया? He said, Mr. Oak, I had never even thought that there is such a problem. कि लंदन में अप मिनिस्टर है मगर डाउन मिनिस्टर क्यों नहीं है? अब आगे दूसरा उदाहरण देखिए। आपको आश्चर्य होगा ये सुन के कि इंग्लैंड के सारे गांव संस्कृत नाम के हैं। जैसे चालकोट, नॉर्थकोट, हीथकोट, किंग्सकोट, तो यह अक्कलकोट, बादलकोट, लोहोकोट, सिद्धकोट, अमरकोट है कि नहीं? इतना ही नहीं, तो आप जो कोट पहनते हैं, क्योंकि कोट ने क्या गांव के इर्द गिर्द रक्षण करने वाली दीवार, तो आपका कोट भी आपके शरीर का रक्षण करने वाला कोट, यह संस्कृत नाम है। और आप समझते हैं अंग्रेजी नाम है। कितना अंधेर है। फिर दूसरा नाम लीजिए, एम्सबरी, श्रूसबरी, वाटरबरी।
ये कृष्णपुरी, जलपुरी, सदामापुरी। आप वाटर पुलिस कंपाउंड देते हैं, वो जलपुरी तो का कंपाउंड है। तो मैंने फाउलर्स नाम की अंग्रेजी पुस्तक लिखी है। ये जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी आपके टेबल पे होती है, इसके एडिटर हैं F.G. फाउलर एंड H.W. फाउलर। तो मैंने उनको पत्र लिखा कि फाउलर साहब, आपने ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में बड़ी भारी गलतियां ऐसी की है, भरमार की है कि ये फलाना वर्ड फ्रॉम फ्रेंच, दिस वर्ड फ्रॉम लैटिन। मैंने कहा ये सारा गलत है, ये सब संस्कृत के हैं। जैसे मैन इन्हें मानव, डोर इन्हें द्वार, कऊ इन्हें गऊ, मीडियम इन्हें माध्यम, एडोर इन्हें आदर, प्रीति इन्हें प्रचारक, सेंट इन्हें संत, सारी संस्कृत पढ़ी है। और आप लोगों को धोखा दे रहे हैं डिक्शनरी के नाम की ये कुछ फलाने फ्रेंच है। तो अब हमें ये एक नई दिशा मिलती है कि मैंने जैसे अंग्रेजी, इंग्लिश इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, वैसे हमारी जो वी वांट टू फाउंड दिस वर्ल्ड वैदिक हेरिटेज यूनिवर्सिटी और एकेडमी। I want people who know French, Latin, German to prove that they are, I will help them. ये सारी भाषाएं जितनी यूरोप की हैं, अरब की हैं, ये सारी संस्कृत से निकली। अब देखिए, इस्लाम की जितनी परिभाषा और परंपरा है सारी वैदिक संस्कृत है। क्रिश्चियनिटी की परिभाषा परंपरा सारी वैदिक संस्कृत है। क्यों? क्योंकि ये मैंने बताया, ये 1300-1500 वर्ष के लोग हैं। ये उससे लाखों वर्ष उनके दादा परदादा सब संस्कृत बोलने वाले थे, वैदिक धर्मी थे। जैसे इस्लाम, ये ईशालयम शब्द है, जैसे देवालयम, ग्रंथालयम। और मैंने कई मुसलमानों को पूछा कि भाई मोहम्मद, ये नाम, मोहम्मद पैगंबर के नाम के पहले किसी भी अरब का नाम मोहम्मद नहीं था। अब जैसे आपको, आपके घर कोई बच्चा होता है तो आप नाम क्या, किसी केशव, अनंत, गणेश, दामोदर, ऐसे जो नाम प्रचलित होता है वो रखते हैं। आप कोई उटपटांग दूसरा नाम तो नहीं रखते ना। आप सोचते हैं कि मेरे दादा परदादा का नाम क्या था या पड़ोसी का नाम क्या है। तो हम मुसलमानों को पूछते हैं कि मोहम्मद पैगंबर के पहले किसी भी अरब का नाम मोहम्मद नहीं था, वो तो बताओ। तो ये नाम पढ़ा कैसे, मालूम नहीं। और तो उनकी जितनी, अब अरबस्तान, जैसे मैंने आपको बताया कि सारे गांवों के नाम अभी तक संस्कृत हैं। इंग्लैंड का मैंने उदाहरण बताया, वैसे मैं सब बता सकता हूँ। वैसे सारे देशों के नाम संस्कृत हैं। जैसे रशिया ये ऋषीय देश है, ऋषियों का देश था। काश्यप ऋषि हमारे ऋषि कुल के मुख्य थे, तो कैस्पियन सी नेम्ड आफ्टर काश्यप ऋषि, काश्यपीय सागर। फिर बल्गेरिया, बल्गेरिया बलगरीय, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, श्रेष्ठ तरह का बल जिसका है वो बल्गेरिया। देन बेल्जियम, बलम अजेयम, जो अजेय फल जो जीता नहीं जा सकता, तो है कि नहीं, सारा यूरोप संस्कृत है। रोमेनिया एक रमणीय प्रदेश है, रमणीय प्रदेश है। तो कितना तरह का काम हमारे इतिहास में करना है हमको। अब अंग्रेजी शब्द देखिए, ये जो जहाँ विस्की ब्रांडी शाम को लोग पीते ना, इंग्लैंड में तो गली गलियों में पब होते हैं, पीयूबी। तो पीयूबी है ना, ये पीपा शब्द है, पीबामी, पीबावा, पीबामा। वी आर ड्रिंकिंग। तो हर जगह पब 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 पब, वो पिक 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 हो रहे। तो ये मैंने संक्षेप में आपको बताया कि सारे विश्व का इतिहास इतना बिगड़ा हुआ है कि वो हर एक उसके जितने भाग हैं, भाषा, संस्कृति, धर्म, ये सब में वैदिक मूल है। इसके ऊपर हमें, मेरी बड़ी बेचैन है, दिन रात मैं बेचैन रहता हूँ कि ये दैवी मुझे प्रेरणा मिली है। मेरे पास एक नया टेक्निक है टू गिव द होल वर्ल्ड न्यू नॉलेज। सो आई वांट समबडी टू कम विद फंड्स। शाम को कम से कम आधा एकड़ जमीन हो, उसके ऊपर एक मकान जहाँ हम लेक्चर दे सकते हैं,
और हम स्टाइपेंड देना पड़ेगा। मुख्य जो उसको धन चाहिए ना, वो जो फ्रेंच जाने वाला है, लैटिन जाने वाला है, इटालियन जाने वाला है, वे लोग हम जो इसमें हम अगर ज़्यादा एडवर्टीजमेंट दें कि वी वांट स्कॉलर्स, सम एजुकेटेड, कुछ स्कॉलर जाएगा क्योंकि ज़्यादा स्कॉलर होता है वो अपने आप को स्कॉलर समझता है, वो कहता है मेरे सीखने लायक कुछ नहीं। बट वी वांट सम वेरी एजुकेटेड पीपल कि जो फ्रेंच जानते हो, अलग अरबी जानते हो, पर्शियन जानते हो, ऐसे हम चाहते हैं। और उनको हमारे तरफ से स्टाइपेंड दिया जाना चाहिए। नहीं तो मुफ्त काम करने के लिए कोई नहीं आएगा, कम से कम उनको 1000-1500 रुपये महीना उनको देना होगा। तब हम उनको लेक्चर देंगे, भाई तुमको अरबी आती है तो अरबस्तान में जाओ, उनको कहो अरबस्तान ये संस्कृत शब्द है, अरबा अरबानो अरबाना है ना, घोड़ा, घोड़ों का देश ये नाम है अरबस्तान, ये मुसलमान नाम नहीं है। और तुर्कस्तान, तुर्क है ना घोड़ा, तुर्कस्तान, ये सारा संस्कृत है। तो हमको ऐसे लोग चाहिए और जिनको हमें स्टाइपेंड देना होगा, उनको हम हमारे लेक्चर देंगे, भाई तुम तुर्कस्तान में जाओ, तुमको टर्की आते हैं, तुमको तुर्कस्तान में जाओ, तुम ईरान में जाओ, तुम इटली में जाओ। और वहाँ पहले, क्योंकि उनके धर्म तो 1300-1500 वर्ष पहले हैं, उसके पहले लाखों वर्ष उनके वहाँ, तो ये वैदिक संस्कृति कैसी थी वो सिद्ध हम कर सकते हैं। अब ये दिस इज ए मैटर ऑफ पीस, अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिटी। ये कोई ऐसे झगड़े की बात नहीं है। मैं तो लोगों को कहता हूँ भाई हम सबको हम इकट्ठा करना चाहते हैं, उनको कहना चाहते हैं कि आप किसके बच्चे हैं, किसके पोते हैं, किसके पड़पोते हैं, आप वैदिक संस्कृत बोलने वालों के पड़पोते हैं। और उसमें हमारी एक विशेषता यह है वैदिक संस्कृति की कि किसी पे कोई दबाव नहीं है। नास्तिक से लेकर, कठोर से कठोर नास्तिक से लेकर कर्मठ आस्तिक तक सबको जगह है इसमें। तो इसमें इन्हें मोहम्मद की प्रार्थना करते हुए भी वो वैदिक धर्म में हो सकता है, क्योंकि यहाँ कोई कपिल मुनि को मानता है, कोई भार्गव को मानता है, तो मोहम्मद को मानो। मगर तो इसमें फुल फ्रीडम कि अगर तुम्हें ख्राइस्ट की भक्ति करनी हो कोई बात नहीं, मगर ख्राइस्ट नाम हर व्यक्ति नहीं था, ये समझ लो। ये कि मैं क्रिश्चियन हूँ इसलिए भाई ख्राइस्ट तो था ही, मैं कुछ मानने वाला नहीं हूँ, प्रमाण मानने वाला नहीं हूँ, ऐसा मत करो। तो इस तरह से ये एक बौद्धिक दिग्विजय का काम है। जैसे कौरव पांडवों तक क्षत्रियों ने विश्व दिग्विजय किया और राजस्वी यज्ञ, ये अश्वमेध यज्ञ, हम तो केवल वो पुराण की बात सुनते, वो पुराण की बात नहीं है, क्योंकि सारा विश्व संस्कृत से भरा पड़ा है। तो अब मैं ये बैकग्राउंड मैंने आपको दी, मेरे मन में क्या बेचैनी है, मुझे क्या आवश्यकता है, ये मैंने आपको बताया। तो आप सब इसके लिए यत्न करिए कि वी मस्ट फाउंड एन एकेडमी ऑफ वर्ल्ड वैदिक हेरिटेज एकेडमी। अब ये तो एक तरह से ब्रह्मांड पुराण है, कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि सारे ब्रह्मांड का इतिहास जुड़ा हुआ है। तो नाउ मैं ताजमहल की कुछ बैकग्राउंड आपको बताता हूँ और फिर हम स्लाइड्स आपको बताएंगे। तो इस संबंध में मैं केवल 38 स्लाइड्स लाया हूँ, 38 स्लाइड्स। मगर आप सबको मेरी ये विनती है कि 10-12 दिन में मेरा एक नया पुस्तक ताजमहल इस तेजो महल है टेम्पल पैलेस नाम का 250 रुपये का पुस्तक प्रकाशित हो रहा है पुणे में। अभी मैं कुछ कॉपी लेने वाला था, लाने वाला था, मगर वो तैयार नहीं हुई अभी तक, बाइंडिंग वगैरह कर रहा। तो मुझे आप जैसे लोग चाहिए कि जो मेरी पुस्तक में लगभग 80 हमने चित्र दिए हैं, 70-80 चित्र उसमें हैं अलग ताजमहल के संबंध में। और जो आप घर बैठे आपके जो मित्र आते हैं, जो अतिथि आते हैं, उन सबको आप वो चित्र बता के पूरी जानकारी दे सकते हैं। ऐसा पुस्तक मेरे पास तैयार हो रहा है, 10 दिन में आप मंगा सकते हैं। और दूसरी बात आप ये करिए कि वो चित्र के स्लाइड्स ऐसे आप बना लीजिए, आप में से जो जरा स्पिरिटेड लोग हों, प्रचार करना चाहते हों, वो हमने जो 70-80 चित्र उसमें दिए हैं उस पुस्तक में, उससे स्लाइड्स जैसे मैंने बनवा लिए वैसे आप बनवा लीजिए और इसका प्रचार करिए कि लोग इतने अन्याय और अन्याय ये इतिहास का कब तक सहन करेंगे। तो अब इससे देखो कितना बड़ा नुकसान होता है। और मैंने इसके आप में से जो वकील होंगे ना, उनको मैंने मुझे रिक्वेस्ट
कि किसी भी ऐतिहासिक स्थान के बाबत अगर हिंदू मुस्लिम झगड़ा होना तो आप मुझे आइए, मैं हिंदू पक्ष को दिलवा दूँ। और ऐसी मैं 2 घटना आपको कहता हूँ। 1964-65 में बाबूराव पटेल के मदर इंडिया मैगजीन जो बॉम्बे से निकलता था, उसमें मैंने लिखा था that the so-called जामा मस्जिद of Ahmedabad is a captured भद्रकाली टेम्पल। तो ये लेख लिखने के बाद जो गए उससे वो भद्रकाली टेम्पल मैं जिसको कहता हूँ, जो जामा मस्जिद मुसलमान कहते हैं, उससे सामने किसी गुजर नाम की एक होजीरी मर्चेंट है। तो उन्होंने क्या किया, उनका पुराना 70-75 वर्ष का मकान गिरा के और बड़ी हवेली खड़ी कर दी। तो जामा मस्जिद अहमदाबाद, सो-कॉल्ड जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद के जो ट्रस्टी मुसलमान, उन्होंने उनके ऊपर दावा किया कोर्ट में, और उसमें ये मांग की कि the court should order KC Brothers to demolish his mansion because it has risen higher than a mosque and it is an insult to Allah। कि हमारे मस्जिद से इनकी हवेली जो ऊंची हो गई है ये गिराई जाए। तो अभी ये कभी ऐसा बिल्डिंग बायलॉ कहीं है कि आपकी हवेली कितनी ऊंची हो, जो मुसलमानों को पूछते उसकी ऊंचाई करो। मगर उसके ऊपर संकट आया तो वकील के पास हो गया। वकील बोलता है बाबा देखो ये सिक्योरिटी का मामला आ गया, गवर्नमेंट घबरा की कहेगी हमें मुसलमान नारों में गिरा दो, तो इसमें लॉ पॉइंट कोई नहीं है, मैं आर्ग्यू क्या करूँ। तो वकील ने भी कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये कई और लोगों के पास गया, तो जिन लोगों ने मेरा वो पढ़ा था लेख, क्योंकि मैंने तो अंग्रेजी में लिखा था दिल्ली से, मगर वो गुजरात का इंटरेस्ट का होने की वजह से वो गुजराती में अनुवादित होके कई गुजराती पेपर में छपा था। ये मुझे कुछ पता नहीं, मगर एक दिन मुझे केसी ब्रदर्स का पत्र आया, इसमें लिखा था उस समय मैं बहुत संकट में हूँ, मेरे पे मुसलमानों ने दावा किया है कि तुम मुझे मकान गिरा दो, और मैं तो लाखों रुपए खर्च कर बैठा हूँ, और मैंने सुना है कि आप कहते हैं कि ये तो भद्रकाली का मंदिर है, तो आप अगर मेरी मदद करेंगे तो मुझे बड़ा मेरे पे आसान होंगे, मैं बड़ा दुखी हूँ। तो मैंने उसको पत्र लिखा कि केसी ब्रदर साहब आप बड़े दुखी हैं, मगर मैं बड़ा आनंदित हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मौका ढूंढता था कि मैं कोर्ट में न्यायालय में अपना रिसर्च सिद्ध कर सकूं। तो अच्छा मौका है। तो मैंने उनको कहा कि आप वकील के पास जाओ और जो प्लेंटिफ के वादी के जो दावा है उसको जो प्रत्युत्तर देना होता है प्रतिवादी की तरफ से, उसमें पहला पॉइंट ये लिखिए that the Muslims have no right to file the suit because this is not a mosque, it is a captured Bhadrakali temple and it will be handed back to the Hindus। तो ये प्लेंटिफ का ये डिफेंडेंट का जवाब कोर्ट ने उनको भेजा कि भाई ये आया है, उन्होंने विड्रॉ कर दी सूट। क्योंकि उनको डर ये हुआ कि भाई वो मस्जिद तो नहीं गिरेगी, ये मस्जिद वो हवेली तो गिरेगी नहीं, ये मस्जिद हाथ से चली जाएगी। तो मुझे आप सबसे विनती है कि यू फाइल ए सूट ऑन ताजमहल दैट इट्स ए कैप्चर्ड टेम्पल, उसका नाम तेजो महालय संस्कृत है, शिव का मंदिर है, वो हमें अभी मैं बताने वाला हूँ। तो इट्स नॉट जैसे मैं अगर पीला धातु आपके पास रखूं और मैं कहूँ ये सोना है, दूसरा मुसलमान कहता है ये पीतल है, तो ये कोई कम्युनल क्वेश्चन नहीं है। ओनली बिकॉज मैं हिंदू कह रहा हूँ ये सोना है और वो कह रहा है पीतल है, तो ये कम्युनल क्वेश्चन थोड़ी है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ साइंटिफिक टेस्ट। तो वैसे मैं सरकार को, जनता को कहता हूँ ये मुसलमानों को तुष्ट करने का या हिंदू को तुष्ट करने का प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न है वो इमारत किसने बनाई, कब बनाई, किस लिए बनाई, ये प्रश्न। एंड दिस इज योर रियल जस्टिस। आपको अगर सत्य की चीड़ हो तो आपने न्याय देना चाहिए, नो मैटर व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस, सत्य ही आगे आना चाहिए। और मगर हमारी गवर्नमेंट है ना, सत्य में हो जाते और अनृत में वो होते, ऐसा होगा। तो डोंट थिंक दैट आई एम कम्युनल। ये कम्युनल का प्रश्न नहीं, ये साइंटिफिक टेस्ट का प्रश्न।
अब ताजमहल ये नाम, आपको आश्चर्य होगा कि इतने सोए हुए हैं इतिहासकार, ताजमहल ये शब्द ही नहीं है कहीं मुगल डॉक्यूमेंट्स में। शाहजहां के और औरंगजेब के जो दरबारी कागजात हैं वो नेशनल आर्काइव में रखे हुए हैं दिल्ली में, सारे मुगलों के जो कागजात हैं। तो कितने इतिहासकार MA PhD बने हुए हैं, हेड ऑफ द हिस्ट्री डिपार्टमेंट बने हुए हैं, और हर वर्ष हिस्ट्री कांग्रेस, प्रोविंशियल हिस्ट्री कांग्रेस, ऑल इंडिया हिस्ट्री कांग्रेस, मगर वो ये नहीं जानते कि ताजमहल शब्द ही नहीं है मुगल डॉक्यूमेंट में। होगा भी कैसे, क्योंकि वो तेजो महालय संस्कृत शब्द है। तो ये सारा झगड़ा जो निर्माण हुआ है, हम समझते हैं कि भाई शाहजहां ने ताजमहल पे करोड़ों रुपए खर्च हुए, वो 20-22 वर्ष बनता रहा, ये सब झूठ है, धोखेबाजी, धोखा है। ऑन द अदर हैंड, उल्टी बात ये नहीं, सारा इतिहास जो आप ताजमहल के बाबत जो भी बात सुनते हैं वो सब सही है, मगर वो उल्टी करके देखिए तो सही है कि आपको ये कहा जाता है कि शाहजहां का शासनकाल was an era of peace and golden age, and इसका मुमताज पे बहुत प्रेम था, अगाध प्रेम था। अब ये तीनों बातें झूठ है, ये मैं आपको कहता हूँ। देखिए, अगर शाहजहां का मुमताज पर इतना प्रेम था तो मैं कहता हूँ पुस्तक कहाँ है बताइए, कोई एक भी स्टोरी बताइए। जैसे रोमियो एंड जूलियट, आपको बाजार में पुस्तकें मिलती है, चाहे जितनी मिले, रोमियो एंड जूलियट, लैला मजनू की पुस्तकें मिलती हैं। मुझे बताओ शाहजहां मुमताज की प्रेम गाथा किस दुकान में मिलती है? तो कितनी झूठ बात है। आप सोए रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रतिकार नहीं करते, विरोध नहीं करते। ये लॉर्ड नेल्सन लेडी हैमिल्टन का प्रेम था, उसकी किताबें बनी हुई है। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की लव अफेयर्स किताबें बनी हुई है, क्वीन विक्टोरिया लव अफेयर्स की किताबें बनी हुई है। फिर शाहजहां मुमताज के प्रेम प्रकरण की किताबें क्यों नहीं बनी? क्योंकि था ही नहीं। ये एक बात। दूसरी बात यह है कि शाहजहां के अनगिनत प्रेम प्रकरण, दुर्व्यवहार दूसरे स्त्रियों के उसके रिकॉर्ड हैं। एक तो शाहजहां के जनान खाने में 5000 स्त्रियां थी, ऑन रिकॉर्ड। उसके दरबारी इतिहासकारों ने लिखा है अकबर के जनान खाने में वगैरह इतने 5000 इतने नॉर्मल एवरेज हर एक सुल्तान बादशाह, तो 5000 स्त्रियां थी। फिर उसमें लिखा है कि 2 दरबारी थे, उनकी स्त्रियां जब इसमें जाती थी, इसके शाहजहां के तक जाती थी, तो भिखारी भी चिल्लाते, अरे तू रखेली है इसकी, शाहजहां की तू रखेली है, किसी दरबार की पत्नी, और दूसरे को भी वो रखेली कहते थे। फिर तीसरा एक है कि शाहजहां इवन हैड एन इलीगल अफेयर विद हिज ओन डॉटर जहानारा बेगम, कि जो अपनी स्वयं जो ज्येष्ठ कन्या थी उससे भी दुर्व्यवहार करता था, और शाइस्ते खान की जो पत्नी, शाइस्ते खान उसका ब्रदर इन लॉ था, शाइस्ते खान की पत्नी से भी दुर्व्यवहार उसने किया। तो इतना दुर्व्यवहारी आदमी, इसको कहना कि भाई मुमताज पे उसका प्रेम था। तो मैंने आपको बताया, अब जो उसके कहते हैं हिज रेन वाज अ रेन ऑफ पीस, वो बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि मेरे पुस्तक में जो अभी मैंने आपको कहा कि ताजमहल जो टेम्पल पैलेस नाम की जो मेरी पुस्तक प्रकाशित हो रही है, उसमें मैंने लगातार शाहजहां रूल फॉर अबाउट 30 ईयर्स, लगभग 30 वर्ष का शासनकाल था शाहजहां का, और उसमें 48 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी उसको। तो जिस रेजिम में हर वर्ष 1.5 या 1.25 लड़ाइयाँ लड़ी जाती, वो इज इट रेन ऑफ पीस? तो इट वॉज अ रेन ऑफ ग्रेट वॉरफेयर, कंटिन्यूअस वॉरफेयर। तो वो 48 कैंपेन मैंने अपना पुस्तक में, और बड़े अकाल पड़े जहाँ लोग भूखे मरते थे, they would sell their sons to get some bread, ऐसा वर्णन नहीं किया। तो जिस शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में इतने अकाल पड़ते थे कि लोगों को अपने बच्चे बेच के पेट भरना पड़ता था, और
जिसमें 48 लड़ाइयाँ 30 वर्ष के शासनकाल में 48 लड़ाइयाँ जिनको लड़नी पड़ी, वो क्या रेन ऑफ पीस एंड गोल्ड नहीं? तो ऐसा धोखा दिया जा रहा है सारे विश्व के इतिहास में। अब वो कहते हैं कि ये जो नाम ताजमहल जो पड़ा है ना, वो मुमताज महल से पड़ा हुआ है, क्योंकि जो उस इमारत में जो स्त्री दफनाई उसका नाम मुमताज महल था, तो इसलिए इमारत का नाम ताजमहल पड़ा। अब ये इतनी धोखेबाजी है, इसमें कई पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये है कि उस स्त्री का नाम मुमताज महल नहीं था, उस स्त्री का नाम था मुमताज उल जमानी। तो इन्होंने वो पोएट्री में जैसे एक दूसरे अनुप्रास होता है ना, तो मुमताज महल ताजमहल, मुमताज महल नाम नहीं था। मैं अभी दरबारी इतिहास का अवतरण आपको बताऊंगा, उसमें मुमताज उल जमानी, दैट इज द लीडिंग लेडी ऑफ द टाइम्स, ऐसा नाम था, महल नहीं। तो ये एक धोखेबाजी है। फिर दूसरी बात यह है कि मुमताज क्या MUMTAZ और ताजमहल के स्पेलिंग क्या है TAJ। तो मुमताज महल जिसमें दफनाई है वो बिल्डिंग ऐसा अगर होता है तो मुमताज महल होता है, न कि ताज महल। ये दूसरा नुक्स है उसमें। और तो मैंने कहा उसका स्वर्ण युग नहीं था, प्रेम नहीं था, मुमताज महल के नाम से वो बना नहीं है, उसका नाम तेजो महल है, ये संपूर्ण नाम है। अब आर्किटेक्ट कौन थे आपको जो कहा जाता है? पहले तो कहते हैं एक ही आर्किटेक्ट था, दूसरे इतिहास कहते हैं कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स, और कोई कहता है वो भारत में ही था, कोई कहता है वो इराक, ईरान, सीरिया सब दूर से वो प्लान मंगवाए। ये सब झूठ है, क्योंकि ताजमहल के बाबत इतना सा भी एक कण भर भी रिकॉर्ड नहीं है। तो आर्किटेक्ट के नाम जो अलग अलग इतिहास में आते हैं वो है ईसा एफंडी। कोई इतिहासकार कहता है आर्किटेक्ट ईसा एफंडी था, कोई कहता है ईसा एफंडी नहीं था, अहमद मेहंदिस था, कोई कहता है अमानत खान शिराजी था, और कोई यूरोपियंस कहते हैं कि अरबी मुसलमान नहीं थे, ऑस्टिन द बोर्डो नाम का फ्रेंचमैन था, और दूसरे यूरोपियंस कहते हैं कि जेरोनिमो विरेडो नाम का इटालियन था। तो किसी को पता नहीं है कि ताजमहल का आर्किटेक्ट कौन है। फिर कितने वर्ष लगे? तो कोई कहता है 10 वर्ष लगे, कोई कहता है 12, कोई 13, 17, 18, 22, ये अलग अलग। फिर खर्चा कितना आया? तो बादशाहनामा जो अवतरण में आपको बतलाने वाला हूँ उसमें लिखा है 6 लाख रुपया पर्शियन में। 6 लाख मीन्स 40 लाख। तो शाहजहां का दरबारी इतिहासकार मुल्ला अब्दुल अमीन लाहौरी, जिसने बादशाहनामा नाम का वो दरबार से तनख्वाह पाता था, शाहजहां का वो नौकर था, दरबारी था, और वो इतिहास लिखता था, और वो स्वयं इतिहास उसमें आप देखो बादशाहनामे में क्या लिखा है। बादशाहनामे में स्वयं वो कहता है भाई ताजमहल हमने नहीं बनाया, मगर फिर भी इतिहास कर कहते नहीं भाई तुम नहीं बनाया। तो आई एम कोटिंग बादशाहनामा वॉल्यूम 1 पेज 403, क्योंकि बादशाहनामा 1662 पृष्ठों का ग्रंथ है, पर्शियन में, और उसके 2 भागों में बटा हुआ है, 1662 पेजेस। तो उसके वॉल्यूम 1 पेज 403 में वो लिखता है, मैं पहले पर्शियन कहता हूँ आपको, पेश आज मीन बिफोर टुडे, आज हमने कब्जा करने के पहले। पेश आज ई मंजिले राजा मानसिंह भू, ई यानी ये मंजिले राजा मानसिंह ने, राजा मानसिंह जो जयपुर का उसका मंजिल मैंशन पैलेस, ई मंजिले राजा मानसिंह भूत, भूत यानी भूत अभूत, ये जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ भूत पर्शियन में कहते। तो पेश आज ही मंदिर राजा मानसिंह भूत, आज हमने कब्जा करने के पहले यह राजा मानसिंह का मंदिर था। फिर वो कहता है वो हमने मानसिंह का पोता जयसिंह, क्योंकि मानसिंह वो कॉन्टेम्पररी ऑफ अकबर, और मानसिंह का पोता जो जयसिंह था वो कॉन्टेम्पररी था शाहजहां का। तो जिस इमारत को मानसिंह मंदिर कहते थे वो हमने किस लिए ली? तो बराए मदफन इन्हें दफन करने के लिए, मुमताज का दफन करने के लिए हमने लिया। और वो वर्णन देता है उस इमारतें व आलिशान व गुंबजे
आलीशान इमारत, और वहाँ गुम्बद है यानी जिसके ऊपर गुम्बद है, और जिसको मानसिंह मंदिर कहते थे, वो इमारत है आलीशान व गुम्बद है जो हमने जयपुर के महाराज जय सिंह के दी, जिसको मानसिंह मंदिर कहते थे, उसमें हमने मुमताज को दफनाया। तो प्रत्यक्ष शाहजहां के दरबारी इतिहास ये कहता है कि बाबा शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनाया, मगर सब लोगों को उल्लू बना जा रहा है कि शाहजहां ने बनाया। फिर एक औरंगजेब का पत्र है। औरंगजेब उस वक्त शाहजहां था, यानी अभी वो गद्दी पे नहीं आया। तो शाहजहां के 4 लड़के थे, तो 4 लड़के जगह जगह अभी गद्दी पे शाहजहां था आगरे में, और भारत भर जो इनके मुल्क थे, कोई बंगाल में था, कोई नॉर्थ इंडिया में पंजाब में था, तो वहाँ ये शाहजहां के लड़के गवर्नर थे, सूबेदार। तो औरंगजेब 1652 की ये बात है, 1652 में औरंगजेब पानीपत में था ऑन ड्यूटी, रॉयल ड्यूटी। तो वहाँ उसको बादशाह शाहजहां के तरफ से हुक्म गया कि भाई उधर दक्खन में अपना जो औरंगाबाद प्रांत है, अब वहाँ उस वक्त शिवाजी का जोर पड़ रहा था दक्खन में, तो शाहजहां ने औरंगजेब की ट्रांसफर पानीपत से दक्खन में औरंगाबाद जाने के लिए उसको कहा। तो उसके ये जब ऑर्डर आया, बादशाह की तरफ से ऑर्डर आया, तो औरंगजेब ने उसको उत्तर लिखा है। आपको जैसे गवर्नमेंट ट्रांसफर करती है तो आप गवर्नमेंट को रिपोर्ट देते हैं कि गवर्नमेंट का ऑर्डर मुझे फलान तारीख को मिला, फिर मैंने चार्ज हैंड ओवर करने के लिए इतने दिन लगे, फिर यात्रा करने में इतने दिन लगे, और मैंने वहां जाके चार्ज लिया। ऐसा जैसा आपका उत्तर होता है गवर्नमेंट को, वैसा उत्तर शाहजहां औरंगजेब ने अपने पिताजी को शाहजहां के नाम से लिखा है। उसमें वो लिखता है, हुजूर बादशाह सलामत खाविन से मुझे जो ये हुक्म मिला, तो मैं पानीपत से निकला और सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, होडल, पलवल, ये नाम दिए उसने, और आगरा, बरहानपुर, ऐसा करते करते, क्योंकि उस वक्त मुक्काम करते करते जाना पड़ता था, हाथी, पालकी, घोड़े लेके। तो वो अब ये 1652 का पत्र देखिए, वो कहता है मैंने जब आगरे में मुकाम किया इस ट्रांसफर में, तो मैं उस पवित्र कब्र, अब यहाँ भी ताजमहल शब्द नहीं बोले था, वो कहता है मैंने उस उज्जवल पवित्र कब्र को भेंट दी। और हुजूर, मुझे एक बड़ी चिंताजनक बात आपको बतलानी है कि वो सारी इमारतें चू रही है, ऊपर पानी भरा हुआ है, डोम जो है वो गुंबद नॉर्थ के तरफ से क्रैक हुई है, दरार पड़ी है। तो ये सारी 7 मंजिली इमारत है। अब देखिए, आपको किसी को मालूम नहीं है कि ताजमहल 7 मंजिली इमारत है, और उसमें से 6 मंजिल बंद हैं, और केवल एक आपको बताया जा रहा है। ये गवर्नमेंट आपको धोखा दे रही है, गाइड आपको धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है। I see the 7 stories and I will show you here that there are 7 stories. और ये औरंगजेब ने लिखा अपने पत्र में कि हुजूर मैं जो गया, तो और वो एक ही इमारत नहीं है, उनके जो इनके 2 इमारतें हैं वो भी 7 मंजिली है, वहाँ एक कुआं है वो भी 7 मंजिली है। तो इसीलिए औरंगजेब लिखता है। अब देखिए, इतिहासकार ये सारी बातें छुपाए हुए हैं, ये या तो वो जानती ही नहीं है, अज्ञानी है, पढ़ाई नहीं, रटा, प्रोफेसर ने क्वेश्चन लिखवा दिए, वो पढ़े, MA PhD हो गए। तो औरंगजेब लिखता है कि हुजूर, मैं बड़ा, मुझे शौक जैसा हुआ कि मैंने वो सारी 7 मंजिली इमारतें, उनमें पानी भरा हुआ है, वो पुरानी है, ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं, इसीलिए मेरी आपसे विनती यह है कि मैं तो जरा जल्दी जल्दी में कुछ मामूली रिपेयर करते जा रहा हूँ, मगर जब तक आप इसका पूरा प्लास्टर वगैरह निकाल के अच्छी तरह से दुरुस्ती नहीं करेंगे, ये इमारतें गिर जाएंगी। ऐसा औरंगजेब ने 1652 में लिखा हुआ पत्र है, जो मेरे पुस्तक में आपको मिलेगा, उसका तर्जुमा मिलेगा, उसका टेक्स्ट मिलेगा, पर्शियन टेक्स्ट। और हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है कि 1631 में मुमताज जो मरी, तो 1652 में 1653 में 22 साल वो कहते लगे। 1653 में नई कोरी इमारत बन के तैयार हुई। 1653 में वहाँ आर्कियोलॉजी का बोर्ड है ताजमहल के प्रवेश द्वार के बाहर। दिस ताजमहल was built as a memorial for Mumtaz by Shah Jahan from 1631 to 1653.
अब हम इनको पूछते हैं कि अरे भाई तुमको ज्यादा मालूम है या औरंगजेब को ज्यादा मालूम है? तो इतना अन्याय अंधार इतिहास में चलता रहा, सारी जनता चुप है, चीज नहीं है किसी को कि इतिहासकार सारे धोखा दे रहे हैं, सरकार धोखा दे रहे हैं। तो अब शाहजहां को क्यों ये जो मामला आया है ना, ये इसलिए इतिहास में ये लिखा है कि शाहजहां को द फर्स्ट मुगल एम्पायर हु मर्डर्ड ऑल हिज राइवल्स। इन्हें बाकियों ने विरोध है कि किसी की टांग तोड़ी, किसी का आंख फोड़ा, मगर इसने तो सबको जान से मार दिया। तो औरंगजेब ने आगे यही किया, बाप का उदाहरण, सब भाइयों को मार डाला। तो शाहजहां ने ये जो विरोधियों के कोई चाचा भतीजा लड़के वो जो उसके विरोधी भाई, इन सबको मारा। तो मारने में आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, यू टू हायर आर्मीज एंड परसू, उनका खर्चा करना पड़ता है। तो जब शाहजहां गद्दी पे आया तो खजाना खाली था। अब खजाना वो बड़ा धूर्त था, कपटी था, क्रूर था। तो वो जन तो सोचने लगे कि भाई मैं बादशाह तो बन गया हूँ सबको मार के, मगर खजाना खाली है, अब क्या करें? तो उसने जब देखा तो उसको ये मालूम पड़ा कि जयपुर राजा, अब जयपुर आगरे से 250 माइल दूर है और जयपुर का सारा राजघराना इनका अंकित था। उनकी स्त्रियां उठा ले जाते थे पीढ़ियों से, और जयपुर उसका कोई प्रतिकार नहीं करता था। तो जयपुर इनके पूरे अंकित थे। तो इसने केवल एक जयपुर महाराजा को संदेशा भेजा कि हमारी पत्नी उधर बरहानपुर में मरी है, वो मुमताज मरी भी नहीं आगरे में। मैं अभी उसका अभी जो शुरू होगा स्लाइड शो 5-10 मिनट में मैं आपको बताऊंगा उसको। वो बरहानपुर में मरी थी। बरहानपुर इज बिटवीन खांडवा एंड बिसावर, सेंट्रल रेलवे। तो वहां मरने के बाद उसको वहां दफनाया था, उस महल के बगीचे में जो एक मंडप है, सारा हिंदू है, उसमें दफनाया था। अब इसको 6 महीने लगे। शी डाइड ऑन 7 जून 1631 और शाहजहां गद्दी पे आया था 1628 फरवरी में। 3 साल बीत चुके थे। वो विचार कर रहा था कि मेरा खजीना जो उसको कैसे भरा जाए। तो उसको मालूम था कि ये जयपुर के महाराजा को जो मानसिंह पैलेस आगरे में है, इसमें खचाखच संपत्ति भरी हुई। क्या क्या था? तो मयूर सिंहासन था, हीरे माणिक लगे हुए, जैसे मयूरों पे उनके चमकदार हीरे माणिक लगे हुए थे। और वो जो जहाँ शिवलिंग था तेजो महालय में, उसके इर्द एक रेलिंग था। उसका ये जो उस वक्त जो टैवर्नियर, बर्नियर, पीटर मंडी वगैरह जो लोग आए थे, उन्होंने उसका वर्णन दिया रखा है कि देयर वाज अ गोल्ड रेलिंग, जेम स्टडेड गोल्ड रेलिंग वर्थ 6 लाख रुपीज उस वक्त। यानी आज से 350 साल पहले उस वक्त 6 लाख कीमत का रत्नों से जड़ा हुआ सोने का रेलिंग वहां था। तो वो रेलिंग, फिर शिवलिंग पे जो घट टंगा हुआ था वो सोने का घट था, जिससे पानी टपकता था शिवलिंग के ऊपर, वो सोने का घट। और उसके इर्द जो आष्टकोणी जाली है वो हीरे माणिक पाचू वगैरह से भरी हुई थी। तो इसको इतनी संपत्ति मिली ताजमहल लेके। तो इसलिए उसने क्या किया कि मुमताज का शव, जो कभी कोई करता नहीं है, कि जिसको 6 महीने उसमें गाड़ दिया है जमीन में, जिसका शरीर आधा अधूरा गल चुका है जमीन में, उसको शव उखाड़ना और चलते, क्योंकि उस वक्त तो ऐसी राजधानी एक्सप्रेस तो